हाय एवरीवन, मैं राजेश शर्मा। आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टी इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। Number of solid particles. Therefore, four types of colligative properties: lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, depression in freezing point, and last one है osmotic pressure. तो we discuss first lowering of vapor pressure. In pure solvent, addition of non-volatile solute, then vapor pressure of solution decreases. That is known as lowering of vapor pressure, which is represented by P minus Ps, where P is vapor pressure of pure solvent, Ps vapor pressure of solution. Then secondly है relative of lowering of vapor pressure. 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 Lowering of vapor pressure. P minus Ps upon P. The ratio of lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent, that is known as relative of lowering of vapor pressure. Then Raoult's, according to Raoult's law, relative of lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. Relative of lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. P minus Ps upon P equal to mole fraction of solute. This equation modified if solvent is larger than solute, so that P minus Ps upon P equal to small n upon capital N. With this equation, to determine molecular weight of solute particles and molality. Next है elevation of boiling point. Elevation of boiling point. Elevation of boiling point. When in pure solvent, addition of non-volatile, non-electrolyte solute, then boiling point decreases. This decreases in boiling point, that is known as elevation in boiling point. Elevation in boiling point is colligative properties, but boiling point does not colligative properties. Elevation of boiling point, delta Tb directly proportional to the molality. Delta Tb equal to Kb into molality. Modified equation, delta Tb equal to I Kb into molality. With this equation, to determine
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। नेक्स्ट है अगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट in pure solvent, addition of non-volatile electrolyte, then vapor pressure of solution decreases and decreases in freezing point, that is known as depression of freezing point. Delta TF, depression of freezing point, directly proportional to the molality. Molality is the better concentration, it does not depend upon temperature. So delta TF equal to KF into molality, where KF is molar depression constant. Modified equation, delta TF equal to I KF into molality, molality. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस क्यों समझना जरूरी है। ऑस्मोसिस बायोलॉजिकल वर्ड है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो उसी में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, the external pressure applied to the solution which stop osmosis process, that is known as osmotic pressure, which is represented by pi equal to CRT, where C is concentration, means molarity, T absolute temperature, and R is solution constant. Generally its value 0.082 atm, mole inverse, Kelvinus. These properties are colligative properties. Modified equation, osmotic pressure equal to I CRT. तो वांडा फैक्टर जो आई होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन concentration are equal, suppose concentration of A equal to concentration of B, then CRT1 equal to CRT2. दिस इक्वेशन अप्लाई होता है और कंसंट्रेशन इक्वल होने के कारण इसको हम ये भी लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C2 कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कंसंट्रेशन मींस होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम लीटर में। फर्स्ट सॉल्यूशन का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम लीटर सेकंड सॉल्यूशन का। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये इक्वेशन मोस्ट प्रोबेबल अप्लाई होती है। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं वाटर फैक्टर। वाटर फैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्यूशन चैप्टर। आई वाटर फैक्टर होता है, वाटर फैक्टर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ particles after dissociate or associate upon initial number of moles, initial number of particles. Suppose I की वैल्यू 1 भी हो सकती है, तो नॉन
इलेक्ट्रोलाइट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट आई लेस देन 1 तो डाइमराइज होगा, डाइमराइज let us examine of water factor of various electrolyte like K4FeCN6 ये aqua में आयनाइज होगा 4K प्लस आयन प्लस FeCN का होल 6 माइनस 4, इसका वाटर फैक्टर I इक्वल टू 5 होगा, 4 पोटेशियम के और 1 फेरोसाइनाइड आयन के। सिमिलरली सोडियम नाइट्रेट हो NaNO3 जो कि aqua में आयनाइज होगा Na प्लस और NO3 माइनस, इसका वाटर फैक्टर क्या होगा 2 होगा। बोनेस Ca3PO4 का वोल्टाइज ये आयनाइज होगा 3Ca प्लस 2 एंड 2PO4 माइनस 3, इसका बॉन्ड फैक्टर इसका भी 5 होगा, 3 मोल्स कैल्शियम 2 मोल्स फास्फेट आयन। तो when solute undergoes as dissociate into the solution then determine water factor, but if partially ionized then how to determine water factor? K4FeCN6 है, FeCN का होल 6 है जो कि aqua में आयनाइज होगा 4K प्लस FeCN का होल 6 माइनस 4, इसके इनिशियल 1 मोल ले लें 0 0, 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट होगा तो 4 अल्फा, इसका 1 है तो अल्फा, तो I हमारा वाटर फैक्टर आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा अपन इनिशियल 1 मोल है, ये से कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जितने परसेंट डिसोसिएट है वो यहाँ रख देते हैं तो वाटर फैक्टर की वैल्यू डिटरमाइन आएगी। सिमिलरली सपोज दैट इस टाइप की इक्वेशन चेंज हो गई AXBY जो कि aqua में आयनाइज होगा XA प्लस YB माइनस X, 1 मोल इनिशियली 0 0, 1 माइनस अल्फा ये X अल्फा और ये Y अल्फा, तो वाटर फैक्टर I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा, इनिशियल हमारा 1 मोल है तो ये इससे डिटर्मिनेशन होगा 1 माइनस अगर अल्फा कॉमन लें तो 1 माइनस AX माइनस Y इक्वल टू वाटर फैक्टर डिटर्मिनेशन होगा। अब अगर कह रहे हैं कि व्हेन मॉलिक्यूल्स अंडरगोज एसोसिएट देखिए मोस्ट प्रोबेबल 3 टाइप्स जो एसोसिएशन होता है, सपोज दैट एथेनोइक एसिड in non-polar solvent it is dimerized as like CCl4, ये इस टाइप की डाइमराइज होगा CH3COOH का वोल्टेज, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण चिलेट्स बनाएगा तो 1 मोल इनिशियली 0, 1 माइनस अल्फा ये अल्फा आगे इसके 2 लिखा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस अल्फा तो अल्फा बाई 2, तो वाटर फैक्टर I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो इस टाइप की इक्वेशन जो है I वैल्यू लेस देन 1 आएगी, अल्फा हमारा कितने परसेंट डाइमराइज हुआ है उसको डिटरमाइन करते हैं और यही आएगी वैल्यू चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में यूज होती है। नेक्स्ट है हमारा एथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और फिनॉल डाइमराइज होंगे। बेंजोइक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में ध्यान रहे, बेंजोइक एसिड
benzoic acid non-polar solvent like in benzene solvent है, उसमें ये डाइमराइज होगा, और डाइमराइज होगा चिलेट्स फॉर्म करेगा, डाइमराइज होगा, आई वैल्यू इसकी लेस देन 1 होगी, 1 0 1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 आगे मूव से 2 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा बाई 2, आई इक्वल टू आएगा आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो आई की वैल्यू लेस देन किसके लिए होगी? फिनॉल है, एथेनोइक एसिड है, ठीक है, और बेंजोइक एसिड, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर में आयनाइज हो जाता है,